ਹੈਲੋ ਵੈਲਕਮ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਮਿਹਨਤੀ ਬੱਚੇ 'ਚ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਸਤ ਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ 2018 ਦੇ ਲਗਭਗ 54 ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਵੈਸੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, 200 300 ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਪਰ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ 'ਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣਗੇ ਪੇਪਰ 'ਚ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਦੂਜੇ ਯਾਦ ਰਹਿਣ ਨਾ ਰਹਿਣ ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਓਕੇ, ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਤੰਬਰ 2018 ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਟੌਪ ਐਸੇ 50 ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਟੈਪ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ US ਓਪਨ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਦੇ ਬਾਰੇ। US ਓਪਨ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ। ਓਕੇ, ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕਿੱਥੇ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ। ਓਕੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਉਹ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨਸ ਸਿੰਗਲ ਟਾਈਟਲ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਵੂਮੈਨ ਸਿੰਗਲ ਟਾਈਟਲ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮੈਨ ਸਿੰਗਲ ਟਾਈਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਜਿੱਤਿਆ, ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ ਨੋਵੈਕ ਡਜੋਕੋਵਿਕ। ਨੋਵੈਕ ਡਜੋਕੋਵਿਕ। ਓਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਮੈਨਸ ਸਿੰਗਲ ਟਾਈਟਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਾਇਆ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ, ਜੁਆਨ ਮਾਰਟਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦਾ ਹੈ। ਜੁਆਨ ਮਾਰਟਿਨ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਦਾ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਨੋਵੈਕ ਨੇ ਟਾਈਟਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਓਕੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵਿਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸਿੰਗਲ ਟਾਈਟਲ, ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਨਾਓਮੀ ਓਸਾਕਾ ਨੇ। ਨਾਓਮੀ ਓਸਾਕਾ। ਓਕੇ, ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਹੈ, ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਸਟ ਐਸੀ ਲੇਡੀ ਹੈ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਟਾਈਟਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਹਨੇ ਹਰਾਇਆ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਡਿਫੀਟ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਅਤੇ ਨਾਓਮੀ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਇਹਨੇ ਹਰਾਇਆ ਸੈਰੀਨਾ ਵਿਲੀਅਮਸ ਨੂੰ। ਓਕੇ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਫੈਕਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੁਆਨ ਵੀ ਨਾਮ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾਓਮੀ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਸੈਰੀਨਾ ਵਿਲੀਅਮਸ ਨੂੰ। ਓਕੇ, ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਮੋਸਟ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਵਰਲਡਸ ਮੋਸਟ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਨਾ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖੂੰਗੀ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੌਣ ਬਣਿਆ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੇਮਸ ਐਡਰਸਨ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਜੇਮਸ ਐਡਰਸਨ। ਐਂਡਰਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਲਡ ਦਾ ਮੋਸਟ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ FIFA ਫੁੱਟਬਾਲ ਅਵਾਰਡਸ ਹੋਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, FIFA ਜਾਂ ਬੈਸਟ FIFA ਫੁੱਟਬਾਲ ਅਵਾਰਡਸ ਬੋਲ ਲਓ। FIFA ਫੁੱਟਬਾਲ ਅਵਾਰਡਸ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵਰਲਡ ਦੇ ਬੈਸਟ ਮੇਲ ਪਲੇਅਰ ਦਾ। ਵਰਲਡਸ ਬੈਸਟ ਮੇਲ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ PLA। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਲੂਕਾ ਮੋਡਰਿਕ ਨੂੰ। ਲੂਕਾ ਮੋਡਰਿਕ।
ओके ये कित्थे दे है, कैरोशियन फुटबॉलर है, ठीक है। इन्होंने वर्ल्ड द बेस्ट मेल प्लेयर का अवार्ड मिले फीफा फुटबॉल अवार्ड्स दे विच। ओके सो नैक्सट न्यूज़ डिस्कस, सो फोर्थ न्यूज़ डिस्कस करते हैं। देखो ऐसी कौन है जिन्हों ने रिकॉर्ड सैट किया है सब तो ज़्यादा वार विमेन दी ਜਿਹੜੇ वनडे इंटरनेशनल होंगे है ना, विमेन की जी क्रिकेट टीम है वनडे इंटरनेशनल सब तो ज़्यादा टाइम कैप्टन बनने का रिकॉर्ड किने बनाया है, मिथाली राज, ठीक है, मिथाली राज। सो इन्होंने 118 टाइम्स ये लीड किया इन्होंने टीम नूं, ठीक है, ODI दे विच। उस तो बाद जी फिफ्थ न्यूज़ है वो हैगी अपने कोल झूलन गोस्वामी के बारे। झूलन गोस्वामी, जो झूलन गोस्वामी है ये फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर बन गई है वर्ल्ड दे विच, ठीक है, जिन्होंने 300 इंटरनेशनल विकेट्स लीती हैं। फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर इन द वर्ल्ड, ठीक है, जिन्हें 300 इंटरनेशनल विकेट्स लीतियां ने, ठीक है। सो सिक्स्थ फैक्ट डिस्कस करते हैं। देखो असम की गवर्नमेंट ने स्पोर्ट एंबेसडर किनू बनाया है, स्पोर्ट एंबेसडर ऑफ असम किनू बनाया गया है, सो उन्होंने नाम है हिमा दास। ओके ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, सो याद रखना है। सैवंथ फैक्ट डिस्कस करते हैं। एक अपने कोल ISSF वर्ल्ड चैंपीयनशिप हुई सी, ठीक है। हुण जिहड़ी चैंपीयनशिप है ये बेसिकली कादे नाल रिलेटेड है, ISSF का मतलब इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, ठीक है। सब तो पहला तो यह पता होना चाहिए होई कित्थे सी, हुई सी साउथ कोरिया के चैंगवॉन दे विच, चैंगवॉन साउथ कोरिया। ओके हुण इहदे विच होर मेन गल की याद रखनी है, एक तो इनू जित्तिया किने है, चाइना ने, ठीक है, चाइना जिहड़ा सी इहदे विच टॉप ते रहा सी। इंडिया का की रैंक आया है, इंडिया का रैंक है इहदे विच थर्ड। ओके सो आपां नूं मेन इंडिया का याद रखना है, तो यह भी याद रख लियो कि कौन जित्तिया, चाइना। इंडिया का थर्ड रैंक आया है, कित्थे होया, चैंगवॉन साउथ कोरिया। ओके उस तो बाद नैक्सट न्यूज़ देखते हैं। 8th न्यूज़ है 100th जिहड़ा अपना इंडिया का 100th ऑपरेशनल एयरपोर्ट कित्थे बने, 100th ऑपरेशनल एयरपोर्ट इंडिया का कित्थे बने, ये भी पूछ सकते हैं, सो इन्हू भी मैं इंपॉर्टेंट मार्क करूँगी। ये बने सिक्किम दे विच, सिक्किम च कित्थे, पैक्योंग। तो एक गल होर याद रखनी है, ये जिहड़ा एयरपोर्ट है 100th ऑपरेशनल एयरपोर्ट है जिहड़ा अपनी कंट्री का जो सिक्किम च बनाया गया है, इंपॉर्टेंट तां भी है बिकॉज ये फर्स्ट ऐसा एयरपोर्ट है जिहड़ा सिक्किम दे विच बनाया गया है। ओके उस तो बाद 9th फैक्ट डिस्कस करते हैं। देखो 9th दे विच ना आपां 2-3 टाइफूनस ते ह्यूरीकेन जिहड़े सितंबर के महीने च आए सी वो डिस्कस करांगे। सब तो पहला एक अपने कोल आया सी ह्यूरीकेन फ्लोरेंस, ठीक है, बस ये पता होना चाहिए भी कित्थे आया सी, US दे विच आया, तो US दे विच कित्थे, कैरोलिना, कैरोलिना, ठीक है, नाम पता होना चाहिए। ह्यूरीकेन फ्लोरेंस कित्थे आया, US दे विच कैरोलिना, फर्स्ट ये हो गया। सैकेंड अपने कोल जिहड़ा हैगा वो हैगा टाइफून मैंगहट, टाइफून मैंगहट। ओके ये बेसिकली अपने को आया सी चाइना दे विच, चाइना दी गुआंगडोंग प्रोविंस दे विच, गुआंगडोंग प्रोविंस। ओके थर्ड जिहड़ा हैगा वो हैगा अपना टाइफून जेबी, ये वाला तो 1-2 एग्जाम दे विच भी आ चुका, टाइफून जेबी। जो टाइफून जेबी है बेसिकली ये आया सी अपने को जापान दे विच, इनू तो याद रखना ईजी है, J फॉर J जापान, ठीक है, जेबी, ठीक है। तो ये जापान दे विच बेसिकली कित्थे आया सी, ओसाका बे दे कोल, बस ये वाला ऐ याद रखना भी कित्थे आया, जापान दे विच, ठीक है। उस तो बाद
उस तो बाद 10th न्यूज़ एक परसनैलिटी के बारे है, वो हैगी है एना राजम मल्होत्रा। बेसिकली सैप्टंबर दे विच, ठीक है, मुंबई च इन्हां दी 91 ईयर्स दे एज दे विच डैथ हो गई सी। हुण इन्हां बारे याद की रखना है, ये याद रखना है कि ये इंडिया दी फर्स्ट वुमेन IAS ऑफिसर सी, इंडियाज फर्स्ट वुमेन IAS ऑफिसर। ओके, इन्हां बारे पोस्ट इंडिपेंडेंस तो बाद, मतलब जो आपां नूं इंडिपेंडेंस मिली है उस तो बाद अगर पूछा जाए इंडिया दी फर्स्ट वुमेन IAS ऑफिसर कौन है, सो एना रंजम। ओके, इन्हां दी डैथ हो चुकी है। उस तो बाद एक होर नाम तुहानूं याद रखना है जिन्हां दी डैथ हो गई सी दिल्ली दे विच, वो हैगे अपने कोल मुनी श्री तरुण सागर। मुनी श्री तरुण सागर। ओके, ये कौन सी है, जैन मॉन्क सी। इन्हां दे बारे की पूछ सकते हैं कि ये कादे लई फेमस सी, ये फेमस सी अपने कड़वे प्रवचन दे करके, कड़वे प्रवचन, ठीक है, उहदे करके फेमस सी। ते कौन सी है, एक जैन मॉन्क। ओके, नैक्सट हुण आपां कुछ बुक्स जिहदे बारे पेपर च क्वेश्चन आ सकता है वो डिस्कस करते हैं। सब तो पहली हैगी अपने कोल 281 एंड बियॉन्ड। इन्हूं मैच द फॉलोइंग तुहानूं पूछ सकते हैं, ठीक है। जी 281 एंड बियॉन्ड है, ये बेसिकली ऑटोबायोग्राफी है कि अपने कोल क्रिकेटर है VVS लक्ष्मण, ठीक है। 281 एंड बियॉन्ड की ऑटोबायोग्राफी है VVS लक्ष्मण। देखो एक होंदी अपने कोल बायोग्राफी, एक होंदी ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी मतलब की होंदा कि किसी परसन दे बारे लिखना, उहदी लाइफ के बारे लिखना। अगर ऑटो वर्ड जुड़ जाए, ऑटोबायोग्राफी मतलब होंदा कि वो बंदे ने खुद लिखा अपनी लाइफ के बारे। ओके, जी बायोग्राफी होंदा कोई होर लिखदा है। उस तो बाद 13th जी बुक है जिहदे बारे पता होना चाहिए, वो हैगी नो स्पिन। नो स्पिन, तो ये बेसिकली ऑटोबायोग्राफी है कि शेन वॉरन दी, शेन वॉरन। ओके, ऑस्ट्रेलियन स्पिन बॉलर है शेन वॉरन, उन्होंने ये ऑटोबायोग्राफी है। ओके, उस तो बाद एक होर बुक है जिहदे बारे पता होना चाहिए, वो हैगी अपनी सी प्रेयर, SEA प्रेयर। ये लिखी हुई है खालिद हुसैनी ने। ओके, देखो एक बार रिवाइज करवा देनी है। 281 एंड बियॉन्ड लिखी हुई है VVS लक्ष्मण ने, नो स्पिन लिखी हुई है शेन वॉरन ने, तो जी सी प्रेयर है वो लिखी हुई है खालिद हुसैनी ने। इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। ओके, उस तो बाद 15th न्यूज़ डिस्कस करते हैं। सो जी नैक्सट न्यूज़ है, दो न्यूज़ है बेसिकली, वो आप अवार्ड्स के बारे पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखो सब तो पहला हैगा अपने को एक मूवी है विलेज रॉकस्टार। ये मूवी ना न्यूज़ च सी, क्यों? देखो सब तो पहले मूवी बारे की पता होना चाहिए, जो पेपर च पूछते हैं। पहली गल ये पूछते हैं कि ये जी मूवी है वो बनाई किने है, सो बनाई है रीना दास ने। ये नाम थोड़े याद रखना है, रीना दास। ओके, सैकेंड गल, ये मूवी न्यूज़ च क्यों है, बिकॉज इनू इंडिया दे विचों ये मूवी है जी बेसिकली वो इंडिया नू रिप्रजेंट करूगी, ठीक है, इन बेस्ट फॉरन लैंग्वेज कैटेगरी दे विच किहड़े अवार्ड्स दे विच, ऑस्कर अवार्ड्स, ठीक है। सो 91st अकैडमी अवार्ड्स बोल लो या ऑस्कर अवार्ड्स बोल लो, उहदे विच जिहड़ी इंडिया तो ये मूवी बेसिकली इंडिया नू रिप्रजेंट करूगी उहदे विच, ठीक है, ऑस्कर अवार्ड दे विच। बस इन्ना याद रखना है, ऑस्कर अवार्ड बोल सकते हो या फिर इन्हों आप की बोल सकते हैं 91st अकैडमी अवार्ड्स, ठीक है। उत्थे ये इंडिया नू रिप्रजेंट करूगी मूवी। विलेज रॉकस्टार किने बनाई है, रीना दास ने। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 15th न्यूज़ 16th जी है न्यूज़, उन्हें ये याद रखनी है, थोड़ा याद ही होगा, एक अपने को INSV तारिणी, ठीक है। ये जी वुमेन सी, उन्होंने पूरे वर्ल्ड नू सेल किया सी
8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟੀਮ ਸੀ ਵੂਮੈਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਟੈਨਜ਼ਿੰਗ ਨੋਰਗੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਡਵੈਂਚਰ ਅਵਾਰਡ। ਸੋ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਅਵਾਰਡ ਦਾ, ਟੈਨਜ਼ਿੰਗ ਨੋਰਗੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਡਵੈਂਚਰ ਅਵਾਰਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਵਿਮਨ ਟੀਮ ਸੀ INSV ਤਾਰਨੀ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾਇਆ ਸੀ 8 ਮੰਥਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੈਨਜ਼ਿੰਗ ਨੋਰਗੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਡਵੈਂਚਰ ਅਵਾਰਡ, ਟੀ ਤੋਂ ਤਾਰਿਨੀ, ਟੀ ਤੋਂ ਟੈਨਜ਼ਿੰਗ, ਓਕੇ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਥੋੜੇ ਨਿਮੋਨਿਕਸ ਵਗੈਰਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਯਾਦ ਰਵੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17th ਨਿਊਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਜੋ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਪੇਪਰ 'ਚ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ 46th ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਉਹ ਕੌਣ ਬਣੇ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਮਿਸਟਰ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਜਾਂ ਜਸਟਿਸ रंजन गोगोई, ठीक है। जस्टिस बोलो रंजन गोगोई। इन्हां नूं तां ना चंगी तरह याद करना है, ये नाम नहीं भुलना, पेपर च आ सकता है, ओके। 18th करंट अफेयर डिस्कस करते हैं, ठीक है। अपने को जिहड़ी प्राइम मिनिस्टर दी एक कमेटी है साइंस टैक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी, PM दी जिहड़ी साइंस टैक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी कमेटी है, ठीक है। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ है वो किनू बनाया गया है? वो बनाया गया है के विजय राघवन नू, ओके। के विजय राघवन, के विजय राघवन नू बनाया गया है, ठीक है। नाम एक बार सुन लिया, याद हो जाऊगा, पेपर च ऑप्शंस देख के याद आ जाऊगा। और तो बाद थोने सूई धागा मूवी देखी होगी, है ना। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ? सोचो, अनुष्का शर्मा एंड वरुण धवन, ठीक है। सो सूई धागा मूवी जिहदे विच अनुष्का शर्मा ते वरुण धवन ने काम किया है, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ? ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ओके। सो किन्हां नूं चुनिया गया है? वरुण धवन एंड अनुष्का शर्मा, ओके। सूई धागा तो याद रखना है। और तो बाद जिहड़ी 20th न्यूज़ है या 20th फैक्ट है, वो है अपना पाकिस्तान दे प्रेजिडेंट कौन बने? पाकिस्तान का प्रेजिडेंट बने डॉक्टर आरिफ अलवी। कौन बने? डॉक्टर आरिफ अलवी, ओके। इन्हां नूं पाकिस्तान का प्रेजिडेंट चुनिया गया। सो 21st जिहड़ा फैक्ट है वो हैगा अपने कोल न्यू प्रेजिडेंट ऑफ मालदीव्स। मालदीव्स का न्यू प्रेजिडेंट किनू बनाया गया? सो इन्हां दा नाम हैगा इब्राहिम मोहम्मद सोलिही। इब्राहिम IBRAHIM, इब्राहिम मोहम्मद सोलिही, सोलिही, ओके। सो ये याद रखनिया चीज़ां। सो 22nd न्यूज़ देखते हैं। देखो जिहड़ी अपनी यूरोपियन यूनियन है, ठीक है, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन लैगिसलेटर्स हैं जो, उन्होंने ऐसी केड़ी कंट्री की गवर्नमेंट है जिहदे खिलाफ प्यूनिटिव एक्शन लिता सी बिकॉज उन्होंने डेमोक्रेटिक रूल्स नूं तोड़िया। सो गवर्नमेंट का नाम पता होना चाहिए, वो हैगी है हंगेरियन गवर्नमेंट, ठीक है। यूरोपियन यूनियन ने इन्हां दे खिलाफ की लिता? प्यूनिटिव एक्शन, मतलब सज़ा देंगे, ठीक है। और तो बाद 23rd फैक्ट की है, एक अपने कोल 4th इंटरनेशनल आयुर्वेदा कांग्रेस हुई सी। 4th इंटरनेशनल आयुर्वेदा कांग्रेस,
ठीक है। ये कित्थे हुई सी ये पता होना चाहिए, बेसिकली 4th लिखा है। ठीक है, ये हुई सी अपनी नीदरलैंड्स दे विच। बस ये बारे इन्ना फैक्ट पता होना चाहिए भी कित्थे ऑर्गेनाइज हुई, नीदरलैंड। ओके, उस तो बाद 24th जिहड़ा फैक्ट है वो हैगा अपना इंटरनेशनल वुमेन एंटरप्रेन्योर समिट। इंटरनेशनल वुमेन एंटरप्रेन्योर समिट। ठीक है, जिहड़ी ये वाली समिट है इंपॉर्टेंट है। ये हुई कित्थे? पहली गल नेपाल दे विच, नेपाल च कित्थे? काठमंडू। सैकेंड इहदे बारे की पता होना चाहिए, इहदा थीम। इहदा थीम सी इक्वैलिटी बिगिनस विद इकनॉमिक एम्पावरमेंट। इक्वैलिटी बिगिनस विद इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। ओके, सो कित्थे हुई? नेपाल काठमंडू दे विच इंटरनेशनल वुमेन एंटरप्रेन्योर समिट। ठीक है, तो यदा थीम की है इक्वैलिटी बिगिनस विद इकनॉमिक एम्पावरमेंट। ओके, उस तो बाद जिहड़ी अपनी 25th न्यूज़ है वो हैगी है G20 दी ट्रेड ते इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्रल मीटिंग। जिहड़े अपने G20 कंट्रीज़ हैं उन्हां दी जिहड़ी ट्रेड ते इन्वेस्टमेंट नूं लैके मीटिंग हुई है। ठीक है, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्रल मीटिंग जिहड़ी है वो कित्थे हुई है? वो हुई है बेसिकली अपने कोल मार दल पलाटा अर्जेंटीना च। मारदल प्लाटा अर्जेंटीना। ओके, उस तो बाद 26th फैक्ट जिहड़ा है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनू भी याद रखना है। हुण तुसीं जिहड़े भी बच्चे फॉरेस्ट कंजरवेटर का एग्जाम दे रहे हैं उन्होंने ये क्वेश्चन आ सकता है। ओके, सो की है देखो, एक अपने को ना वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन दा प्रोग्राम है T×2। मतलब क्या है कि जी टाइगर्स की पॉपुलेशन है उन्होंने 2 नाल मल्टीप्लाई करता, मतलब क्या होया? डबल करता। ठीक है, सो जिहड़ा अपने कोल वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन है उसका प्रोग्राम है T×2। ये बेसिकली डबल करना है टाइगर की पॉपुलेशन नूं। ठीक है, सो जिहड़ा नेपाल है वो ऐसी फर्स्ट कंट्री बन गया है जिन्हें ये प्रोग्राम के तहत अपनी टाइगर पॉपुलेशन नूं डबल किया है। ठीक है, नेपाल फर्स्ट कंट्री बन गई है वर्ल्ड दे विच जिन्हें कि प्रोग्राम के तहत अपनी टाइगर पॉपुलेशन नूं डबल किया है। ओके, सो ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, मैं बोल रही हूँ, देखो अगर तुहानूं समझ नहीं आता मैं शॉर्ट लिख दिंदी है, पर मैं बोल देनी हुंदी है, सो तुसीं समझ जा करो। ठीक है, उन्हां टाइम थोड़ा घट वेस्ट होंदा है, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाती है। उस तो बाद 27th फैक्ट देखते हैं, वो हैगा अपने कोल एक आईओ वेव 2018। ठीक है, एक अपने कोल एक्सरसाइज हुई सी। बेसिकली ये है कि इंडियन ओशन वेव एक्सरसाइज इनू बोल सकते हैं, इंडियन ओशन वेव एक्सरसाइज। ठीक है, ये बेसिकली 24 नेशनस ने की सी मल्टीनैशनल सुनामी अवेयरनेस एक्सरसाइज है। सुनामी नू लैके सुनामी अवेयरनेस एक्सरसाइज है। ठीक है, इंडियन ओशन वेव एक्सरसाइज सुनामी अवेयरनेस में बेसिकली ये ना मॉक ड्रिल्स वगैरह किए गई सी 20 कंट्रीज़ के राही कि अगर कितने सुनामी आ जाती है कि उस टाइम असी की चीज़ां करिए, उहदे लई प्रिपेयर रहिए, वो किया गया सी। ठीक है, तो कित्थे होया सी? नाम तो ही पता लग रहा हुई सी इंडियन ओशन दे विच। ओके, सो उस तो बाद 28th फैक्ट अपने को है एक अपने को ग्लोबल, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि क्लाइमेट दे नाल रिलेटेड है वाली भी, ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन समिट। जी ग्लोबल एक्शन क्लाइमेट समिट 2018 है, ये हुई कित्थे है? ये पता होना चाहिए। ये हुई है सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स के विच सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स की हुई ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन समिट 2018। ये बेसिकली 4000 बिजनेस
ने सिटीज़ ने अलग अलग जाना ने पार्टिसिपेट किया तो उन्होंने कहा कि ਜਿਹੜੇ भी ਪੈਰਿਸ एग्रीमेंट ਦੇ ਗੋਲਸ हैं ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ पूरा करांगे ओके। और तो बाद ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਕਿਉਂ ਸੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਹੈ ਜਾਂ PNB ਬੋਲੋ ਇਹਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਬੈਂਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦਾ। ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ फाइनैंशियल सर्विसेज ने इन टर्म्स ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शन। ठीक है, मतलब कि होया जिहड़ा PNB है वो फस्ट रैंक मिलिया उन्होंने पब्लिक सैक्टर बैंक्स चों किहड़ी टर्म्स दे विच? डिजिटल ट्रांजैक्शन दी टर्म्स च। ठीक है, तो ये चीज़ किने कीती है? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनैंशियल सर्विसेज ने। ओके, बस ये जस्ट अ फैक्ट एज अ फैक्ट याद रखियो। ओके, नैक्सट हुण आपां पढ़ते हैं। देखो एक होर गल मैं तुहानूं अपनी अगस्त वाली वीडियो च भी दसी सी ये गल कि जो डिफेंस दे नाल रिलेटेड चीज़ां ने, जो इंडैक्स दे नाल इंडिया दे वेरीअस इंडैक्स दे विच की रैंकिंग रही वो सब चीज़ां ते साइंस ते टैक्नोलॉजी नाल रिलेटेड जो चीज़ां कि किहड़े मिशनस होए, किहड़ी सैटेलाइट्स लॉन्च होई, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ां है पर उन्होंने उपर वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड हो चुकिया ने। उन्हों का जिहड़ा लिंक है तुहानूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स च भी मिल जूगा तो एंड स्क्रीन पर भी मिल जूगा। सो तुसीं वो वालियां वीडियोज़ 4 ने, साइंस के 2 पार्ट्स हैं। एक्सरसाइज एक वीडियो आई थिंक 18 मिनट्स की है तो एक इंडैक्स की वीडियो है, वो पक्का देखनी, उन्होंने छड़ना नहीं है। ठीक है, तो देखनिया ने वो भी देखनी है। ओके, सो वापस आने हैं 30th जी अपनी न्यूज़ है वो हैगी है बेसिकली अपने ना 3 बैंक्स नूं मर्ज किया गया सी। ठीक है, ताकि कंट्री का 3rd लार्जेस्ट लैंडर बैंक बनाया जाए। वो किहड़े बैंक्स हैं जिन्हों का मर्ज किया गया, बस उन्होंने नाम पता होने चाहिए हैं। फस्ट अपने को हैगा बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा। सैकेंड हैगा अपने को विजया बैंक। मतलब ये कई बार वैसे पूछते नहीं, मैनू नहीं लगता कि पंजाब के पेपर च कुछ पूछणगे, बट इन्हों का भरोसा भी कोई नहीं। ठीक है, सो पता होना चाहिए एक बार ताकि उत्थे देख के ऑप्शन याद आ जाए। बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक तो 3rd हैगा अपने को दीना बैंक। ठीक है, गवर्नमेंट ने प्रपोज किया बेसिकली कि इनू मर्ज किया जाए तिन्हों ताकि 3rd लार्जेस्ट बैंक बन जाए अपने इंडिया का। और तो बाद ये अपनी 31st न्यूज़ है वो बेसिकली की है देखो जिहड़ा सिडबी है SIDBI, सिडबी का मतलब की होंदा है ये हैगा स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, जिहड़ा सिडबी है वो ऐसा फस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोल लो बन गया है जिन्हों ने MSME सैक्टर के लिए, MSME मीनस माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। ठीक है, इन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिहदे विच की है कि जिहड़े MSME सैक्टर्स हैं इन्हों लोन मिल जूगा अप टू 1 करोड़ तक 59 मिनट्स के अंदर अंदर। तो ये कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है बिकॉज अगर ये लोन लेंदे हैं वैसे इन्ना तो 50 to 60 डेज़ लग जाते हैं, बट हुण की है इन्हों 59 मिनट्स के अंदर अंदर लोन मिल जूगा। ठीक है, सो तुहानूं ऑर्गेनाइजेशन पता होने चाहिए भी किन्होंने लॉन्च किया है। सिडबी ने पेपर च ऑर्गेनाइजेशन पूछते होंगे हैं। 32 फैक्ट है बेसिकली वो रिलेटेड है ओम बर्ड्समैन गाइडलाइनस के नाल। ठीक है, जिहड़ा RBI अपना उन्हें ओम बर्ड्समैन की गाइडलाइनस नूं थोड़ा स्ट्रिक्ट करता। RBI ने कहा है जिन्हें भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स जिन्हों दी 10 या 10 तो ज़्यादा ब्रांचेस ने, ठीक है, उन्होंने ओम बर्ड्समैन नूं अपॉइंट करना पऊगा। हुण जिहड़ा आह वर्ड है ओम बर्ड्समैन ये पेपर च तुहानूं डायरैक्ट पूछ सकते हैं, मतलब की है। देखो ये बेसिकली की हुंदा है हुण जिवें बैंक्स दे विच कंप्लेंट्स आपां दिंदे हैं पर कई बार की हुंदा है कि जिहड़ा बैंक है वो कंप्लेंट नूं रिजैक्ट कर दिंदा है। सो वो सारियां कंप्लेंट जो बैंक ने रिजैक्ट करतियां उन्हां नूं कौन देखूगा? ओम बर्ड्समैन। ठीक है, ये बेसिकली की हुंदा है एक बंदा हुंदा है जिहदे कोल कोई भी जिहड़ा कस्टमर है बैंक का वो कंप्लेंट लैके जांदा है जिन्हों बैंक ने मनन तो इनकार करता होवे। ठीक है, हुण इहनूं सिक्योरिटी देण दे लई की हुंदा है कि जिहड़ा इहदा टेन्योर है वो 3 तो लैके 5 साल दे विच हो सकदा है। ते सैकेंड गल इहनूं बैंक है जिहड़ा वो रिमूव नहीं कर सकदा RBI दी परमिशन तो बिना। ठीक है, इहदा
बेसिक थोड़ा मैं मतलब दसता, सो याद रखना है। तो ये हुण जिहड़ा है इनू किहदे लई अपॉइंट करना जरूरी हो गया, सारे स्कैड्यूल कमर्शियल बैंक्स जिन्हां दी जिहड़ी ब्रांचिज है 10 है या 10 तो ज़्यादा है, उन्हां लई इनू अपॉइंट करना जरूरी है। ठीक है, और तो बाद 33rd फैक्ट देखते हैं, वो हैगा अपने कोल जिहड़ी प्रधानमंत्री जन धन योजना है, प्रधानमंत्री जन धन योजना जिहदे अंडर है ना कि बैंक अकाउंट बनाओ, इहदे विच इन्हां ने कुछ चेंजिस किते हैं। पहली गल इन्हां ने ये किया कि जिहड़ा एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर है, ठीक है, उन्होंने 1 लाख तो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर है उन्होंने 1 लाख तो 2 लाख करता। ठीक है, और तो बाद एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होंदी है उन्होंने 5000 तो 10000 करता। ठीक है, तो जी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की जी एज लिमिट है भी कौन कौन करा सकता है, वो पहला हैगी सी 18 तो लैके 60 साल तक, पर हुण उन्होंने 18 तो लैके कितना करता 65 ईयर्स तक। बस ये एज अ फैक्ट याद रखना इन्ना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, और तो बाद नैक्सट देखो 34th जी न्यूज़ है वो अपने को है कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक लॉन्च किया है गवर्नमेंट ने। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जिहड़ा है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। ठीक है, इसदा हैड कौन होगा, अपना इंडियन गवर्नमेंट होगी इसदी हैड, मतलब इनू रेगूलेट इंडियन गवर्नमेंट करू। हुण अपने कोल वर्ड है पेमेंट बैंक, जिहड़ा इंडियन पोस्ट है मतलब पोस्ट ऑफिस दे विच मतलब की हो गया था बेसिक जा समझिए कि जिहड़े पोस्ट ऑफिस हैं हुण वो भी पेमेंट बैंक की तरह एक्ट करांगे। ठीक है, मोटा जा मतलब इहदा यह है। हुण अगर अपने को टर्म दी हुई है पेमेंट बैंक, ये वाला ना बहुत पूछने पेपर च कि पेमेंट बैंक की हुंदा है। ठीक है, देखो जिहड़ा पेमेंट बैंक हुंदा है बेसिकली इहदे विच सिर्फ और सिर्फ सेविंग ते करंट अकाउंट ही ओपन हो सकते हैं। ठीक है, सेविंग एंड करंट अकाउंट ओपन हो सकते हैं पहली गल। तो जिहड़ा दा बैलेंस हुंदा है सेविंग ते करंट अकाउंट दे विच ओह 1 लाख तो ज़्यादा नहीं हो सकता, 1 लाख तक दा इहदे विच सेविंग ते बैंक सॉरी सेविंग ते करंट अकाउंट खोलिया जा सकता है। सैकेंड गल की है जिहड़े पेमेंट बैंक्स हुंदे हैं, ठीक है, ये फिक्स डिपॉजिट नहीं मतलब कर सकते, सेविंग ते करंट अकाउंट ही खुलवा सकते हैं। ठीक है, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ FD करा सकते हैं मतलब फिक्स डिपॉजिट नहीं करा सकते। सैकेंड गल की है ਜਿਹੜੇ बैंक्स होंगे ये लोन्स भी नहीं दे सकते। सो पेपर च पूछ लेंगे कि पेमेंट बैंक लोन दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। फिक्स डिपॉजिट रख सकते हैं या एक्सैप्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो सेविंग या करंट अकाउंट खोल सकते हैं पर किन्ने तक 1 लाख रुपए तक। ठीक है, आई होप थोड़ा समझ आ गया, वो इंपॉर्टेंट है। और तो बाद 35th न्यूज़ देखते हैं आप। ये बेसिकली एक छोटी जी चीज़ है जिहड़ा अपना आइडिया ते वोडाफोन है, इन्हों काफ़ी घाटा हो रहा है ना रिलायंस के चलते। सो इन्हों दोनों ने की करता मर्ज करता। ठीक है, तो हुण वोडाफोन आइडिया लिमिटेड बन गई है, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। ठीक है, तो ये जो इन्हों का मर्जर है वो इंडिया का लार्जेस्ट टैलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर उन्हें बन गए अपने मर्जर तो बाद। ये बेसिकली छोटी जी न्यूज़ है, एवं पूछ लेंगे कि आइडिया ने किन नाल मर्ज किया है वोडाफोन नाल या वोडाफोन ने किन नाल मर्ज किया है आइडिया नाल। ठीक है, उस तो बाद 36 न्यूज़ देखते हैं। देखो जी अपनी इंडियन गवर्नमेंट है वो ये सोच रही है, हुण आपां नूं पता है कि जिहड़े अपनी इंडियन रेलवेज़ हैं वो फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ करते हैं ना ट्रेनस चलन दे लई। सो इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि असी रेलवेज़ की इंडियन रेलवेज़ की इलैक्ट्रीफिकेशन कर देंगे कब तक 2021 तो लैके 2022 दे विच भी जिहड़ियां भी इंडियन रेलवेज़ हैं जिन्नियां भी ट्रेनस है मतलब अपने वो सारियां इलैक्ट्रिसिटी नाल चलन लगा देंगे। ठीक है, सो पूछ सकते हैं भी कब तक करेंगे 2021 तो लैके 2022 तक। ठीक है, एज अ फैक्ट इनू याद रखियो। उस तो बाद अपने कोल की है इंडियन गवर्नमेंट सोच रही है कि जिहड़ा कंट्री का फर्स्ट ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट है वो कित्थे लगाया जाऊगा, कंट्री का फर्स्ट ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट है जिहड़ा वो लगाया जाऊगा अपने कोल गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ खंबात
आई थिंक खंबात बोलते हैं, ठीक है। जो कंट्री का फर्स्ट ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजैक्ट है गल्फ ऑफ खंबात च लगाया जाऊगा, कित्थे है, गुजरात। बस इन्ना फैक्ट याद रखना है, ओके। उस तो बाद 38 फैक्ट अपने कोल की है कि एक ट्रिपल तलाक नूं लैके चीज़ आई सी ना, ट्रिपल तलाक, ठीक है। हुण इहदे विच की कानून बनेगा कि 3 साल की सज़ा होगी अगर कोई बंदा अपनी वाइफ नूं ट्रिपल तलाक मतलब इंस्टेंट तलाक दे दिंदा, तलाक बोलते हैं ना, कि अगर कोई इंस्टेंट तलाक देने की कोशिश करूगा तो उन्होंने 3 ईयर्स की जेल हो सकती है, ठीक है। ये मेन ये याद रखना है। उस तो बाद 39th जी न्यूज़ है वो हैगी अपने कोल, मतलब मैं तुम्हें मेन चीज़ां दस रही हैं जो तुम्हें याद रखनियां ने, ठीक है। 39th अपने कोल फैक्ट है एक अपने कोल ना ग्लोबल मोबिलिटी समिट हुई सी, ठीक है, जिन्हों मूव भी बोल सकते हैं, MOVE, ग्लोबल मोबिलिटी समिट, ठीक है। ये बेसिकली कित्थे हुई सी, न्यू दिल्ली दे विच। ਇਹਦਾ मेन मकसद सीगा कि जिहड़े अपने ट्रांसपोर्टेशन है उन्होंने सेफ बनाना, क्लीन बनाना, वो सब चीज़ां, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन नाल रिलेटेड सी। तो इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज इनू नीति आयोग ने होस्ट किया सी, नीति आयोग। सो पेपर पूछणगे कि जिहड़ी मूव अपने कोल मूव या ग्लोबल मोबिलिटी समिट है उन्होंने किने होस्ट किया है, नीति आयोग ने। तो किहदे नाल रिलेटेड है, ट्रांसपोर्टेशन दे नाल, कि ट्रांसपोर्टेशन नू सेफ बनाया जाए, क्लीन बनाया जाए, वो सब चीज़ां, ओके। उस तो बाद जिहड़ा अगला पॉइंट है इंपॉर्टेंट है वो हैगा आयुष्मान भारत के रिगार्डिंग, आयुष्मान भारत स्कीम, ठीक है। बेसिकली सितंबर च इहनूं लॉन्च किया गया सी, ठीक है। ये वाली स्कीम का तुहानूं सैकेंड नाम पता होना चाहिए, वो हैगा प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना। ये पूछ सकते हैं कि ਇਹਦਾ सैकेंड नेम की है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है। उस तो बाद ये बेसिकली की है कि 10 करोड़ जी फैमिलीज़ हैं उन्होंने बैनीफिट दिता जाऊगा ये अंडर हैल्थ इंश्योरेंस दे के, ठीक है। तो ये की है 5 लाख रुपीज़ दिते जाएंगे हर साल फैमिली नूं हैल्थ के लिए, ठीक है। तो ये किन्नियां डिजीज़ नूं कवर किया गया है, ये है अपने को 1300। तो जो वर्क होगा बिल्कुल वो पेपरलैस कैशलैस होगा, ठीक है। स्कीम के अंदर बेसिकली क्या है कि हुण जिवें कई लोग ऐसे होंगे हैं जो इलाज नहीं करवा पाते, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां लगी होंगी बट उन्होंने को इन्ने पैसे नहीं होंगे कि वो इलाज करा पान, तो उन्होंने डैथ हो जाती है, ठीक है। सो उन्होंने अंडर कि जो बहुत ही गरीब ने ऐसे 10 करोड़ फैमिलीज़ नूं सेंसस के बेसिस पर देखा जाऊगा, तो उन्होंने 5 लाख रुपीज़ पर ईयर दिते जाएंगे ताकि वो अपनी बीमारियां का इलाज करा सकन, ठीक है। तो ये अंदर किन्नियां डिजीज़ या एलमेंट्स नूं कवर किया गया 1300। तो जो पूरा वर्क है वो पेपरलैस कैशलैस होगा, ठीक है, ताकि कोई मिडल मैन आके उसका फायदा ना उठा सके। उस तो बाद एक छोटी जी न्यूज़ है 41st है ना फैक्ट है, बस 9 रह गई हुण तां, ठीक है। टाइम ना देखो, कर लो फटाफट। एक अपने को ना PM आशा करके आया सी, PM आशा, ठीक है। ये बेसिकली की है, यदि अगर फुल फॉर्म देखिए हैगी है प्रधानमंत्री अन्नदाता, अन्न ANNA अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, ठीक है। ये बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट ने PM आशा करके एक अपने को अभियान चलाया है। ये की है कि जिहड़े फार्मर्स की इनकम है उन्होंने प्रोटैक्ट करने के लिए चलाया है। कद ਇਹਦਾ एम की है, टू प्रोटैक्ट फार्मर्स इनकम, ठीक है। नाम तो ही पता लग रहा है कि है अन्नदाता आय, कि अन्नदाता की आय नूं बचाना संरक्षण अभियान, ठीक है। ये बेसिकली कि हुण आपां नूं पता जी गवर्नमेंट है वो मिनीमम सपोर्ट प्राइस नूं हाइक करती रहिंदी है, बट कई बार की हुंदा जिहड़े फार्मर्स उन्हां तक ये चीज़ का फायदा पहुँचता ही नहीं है। सो उन्हां तक पहुँचाउण दे लई फायदा जिहड़ी इंडियन गवर्नमेंट उन्होंने प्रधानमंत्री आशा करके स्कीम लॉन्च की है, ठीक है। बस ਇਹਦਾ एम पता होना चाहिए। उस तो बाद नैक्सट देखते हैं 42nd न्यूज़ है जी, एक बेंगलुरु स्पेस एक्सपो होया सी,
ठीक है। बेसिकली 6th एडिशन होया सी इहदा, ये कित्थे होया सी नाम तो ही पता लग रहा है, बेंगलुरु दे विच। ठीक है। उस तो बाद ये बारे एक होर चीज़ की याद रखनी है कि इंडिया के नाल ऐसी किहड़ी कंट्री है जिन्हें इनू ऑर्गेनाइज किया। सो इंडिया प्लस फ्रांस ने इनू ऑर्गेनाइज किया सी। ठीक है। तां करके मैं करवाया है कि कई बार पुछ लेंदे भी किहड़ी इंडिया नाल मिल के किहड़ी कंट्री है जिन्हें इनू ऑर्गेनाइज किया। इंडिया नाल फ्रांस ने मिल के इनू ऑर्गेनाइज किया। उस तो बाद 43rd जिहड़ा फैक्ट है वो की है कि फर्स्ट टाइम बस सर्विस चल रही है। ठीक है। किदे ते किदे विच? बिहार ते नेपाल दे विच फर्स्ट टाइम बस सर्विस स्टार्ट हो रही है। बिहार दे बोध गया नू कनैक्ट किया जाऊगा ये बस सर्विस रूट दे विच नेपाल दे काठमंडू दे नाल। पेपर सीधा पूछणगे कि बिहार ते नेपाल दे केड़ी-केड़ी प्लेसिस नू ज्वाइन किया गया, बोध गया नू किया गया है काठमंडू दे नाल, बस सर्विस है। ठीक है। और तो बाद नैक्सट 44th न्यूज़ है जिहड़ी वो हैगी अपने कोल इंडिया दे विच फर्स्ट ट्रांसपोर्ट सैक्टर दी यूनीवर्सिटी खुलन जा रही है जिहदा नाम की है नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट। नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट है जिहड़ा। ठीक है। कित्थे खुलूगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये खुलन जा रहा है अपने को वडोदरा गुजरात। ओके। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और तो बाद 45th फैक्ट है जिहड़ा वो ये है एक अपने को ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स आया सी। ठीक है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स दे विच इनू बेसिकली लॉन्च पहला किने किया? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। ठीक है। तो ये विच टॉप किने किया है? आंध्र प्रदेश ने। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स नू टॉप किने किया? आंध्र प्रदेश ने। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने इनू लॉन्च किया है। नैक्सट करते हैं 46th फैक्ट वो हैगा एक अपने को स्वदेश दर्शन स्कीम है। ठीक है। ये विच अपना फर्स्ट ट्राइबल सर्किट कित्थे खुलन जा रहा है। अलग अलग सर्किट्स है ना, जिमें राम सर्किट, कृष्ण सर्किट, एक अपना पंजाब का भी सर्किट है। वो मैं थोनों पंजाब के करंट अफेयर वाली वीडियो कवर कराया हुआ है, तुसीं मैनूं उहदा कमेंट सैक्शन नाम दसोगे। ठीक है। जिहड़ा फर्स्ट ट्राइबल सर्किट है ये कित्थे खुलन जा रहा है? इन्ना पता होना चाहिए। खुलूगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। ठीक है। स्वदेश दर्शन स्कीम है बेसिकली ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अलग-अलग सर्किट्स बनाए हैं कि जिमें कृष्ण जी नाल रिलेटेड ਜਿਹੜੀ प्लेसिस हैं उन्होंने ज्वाइन करना। ठीक है। बुद्धिस्ट सर्किट भी है कि बुद्धा नाल रिलेटेड जो है उन्होंने ज्वाइन करना। सो वो मतलब है। सो जो ट्राइबल सर्किट है कित्थे बन रहा? छत्तीसगढ़ दे विच। पंजाब दा तुसीं मैनूं कमेंट च दसोगे। ओके। नैक्सट 47th न्यूज़ देखते हैं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ योर सिटी करके। टाइम ना देखो। ठीक है। बस होने वाला ही है कवर। 3 न्यूज़ हो रही हैं ये तो बाद। मोबिलाइज योर सिटी करके जो एग्रीमेंट है वो इंडिया ने किहड़ी कंट्री नाल साइन किया है? फ्रांस दे नाल। पहली गल ये पता होनी चाहिए है ये किहदे रिलेटेड है। ये हैगा कि अर्बन जिवें जिहड़े अपनी अर्बन सिटीज़ हुंदियां। ठीक है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ट्रांसपोर्टेशन ਦੇ ਕਰਕੇ बहुत ज़्यादा अपने को पॉल्यूशन क्रिएट होंदा है तो ग्रीन हाउस गैसिज एमिट होंदी है उन्होंने घटाने के लिए जो मोबिलाइज योर सिटी है वो एग्रीमेंट साइन होया। बेसिकली की है कि ये जी ग्रीन हाउस गैसिज हैं इन्हों की अमाउंट नू अर्बन ट्रांसपोर्ट च घटाना। ठीक है। एम भी दसता तो कंट्री भी दसती। उस तो बाद 48 न्यूज़ जी हैगी है वो हैगी अपना इंडिया का बिगेस्ट इंटरनेशनल कन्वेंशन ते एक्सपो सेंटर है जो कित्थे बनूगा? इंडियाज़ बिगेस्ट इंटरनेशनल कन्वेंशन
एंड एक्सपो सेंटर। ठीक है, ये खुलूगा बेसिकली अपने को द्वारका न्यू दिल्ली दे विच। ओके, वो तो बाद जिहड़ी 49 न्यूज़ है इंपॉर्टेंट है काफ़ी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ है कि इंडिया ने ऐसी केड़ी दूसरी कंट्री है जिहदे नाल फ्रेंडशिप प्रोडक्ट पाइपलाइन प्रोजेक्ट है जिहड़ा साइन किया है। सो इनू साइन किया है किने किने, इंडिया ने प्लस बांग्लादेश ने। ठीक है, ये विच की है बेसिकली इंडिया दे वैस्ट बंगाल तो लैके बांग्लादेश, इंडिया दे वैस्ट बंगाल तो लैके ठीक है बांग्लादेश दे विच एक अपने कोल जगह है जिहदा नाम है परबत्तीपुर। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ रिफाइंड डीजल ऑयल ਦੀ सप्लाई की जाऊगी। रिफाइंड डीजल ऑयल ਦੀ सप्लाई की जाऊगी पाइपलाइन के थ्रू। ठीक है, वैस्ट बंगाल तो लैके बांग्लादेश के परबत्तीपुर तक। ओके, उस तो बाद सो लास्ट न्यूज़ एंड वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ सितंबर दी, इंडिया ते ऐसी केड़ी कंट्री है जिन्हें 2+2 डायलॉग किया सी। इंडिया ते USA ने किया सी। सब तो पहली चीज़ इन्होंने किया सी 2+2 डायलॉग। DIAL आना सी बेसिकली, DIALOGUE। ठीक है, डायलॉग बेसिकली ये की सी कि 2 जाने इंडिया तो गए सी ते 2 जाने USA तो जिन्होंने मीटिंग की। सो इंडिया तो जिहड़ा सब तो पहला नाम है वो कौन है, मिसेस सुषमा स्वराज एंड मिसेस निर्मला सीतारमन। ओके, और तो बाद जिहड़े अपने को USA तो 2 बंदे सी, पहले हैं सैक्रेटरी ऑफ स्टेट मिशेल पोम्पियो एंड सेकेंड वन इज डिफेंस सैक्रेटरी जेम्स मैटिस। ओके, सो ये है। तो दूसरी गल जिहड़ा इंडिया ते US है उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिहदा नाम की है कोमकासा। ठीक है, कोमकासा एग्रीमेंट, ये फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। ये फुल फॉर्म हैगी है कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। ओके, ये जिहड़ा एग्रीमेंट है ना वो USA कई कंट्रीज़ नाल ही करदा है। इहदे विच की हुंदा है कि मतलब जिहड़ी आपां नूं पता है कि जिहड़ा US है उन्हां कोल बहुत ही अच्छे डिफेंस दीयां चीज़ां ने। ठीक है, सो ये एग्रीमेंट दे अंदर वो जिहड़ी अपनी हाई एंड टैक्नोलॉजी दी चीज़ां ने वो कुछ कंट्रीज़ नूं दिंदे हैं। ओके, अपनी जिहड़ी टैक्नोलॉजी है वो शेयर करते हैं। सो इंडिया ते USA ने भी कोमकासा करके जिहड़ा एग्रीमेंट है साइन किया है। ठीक है, सो ये याद रखना है, तो इसकी फुल फॉर्म की है ये याद रखना है। सो अपने जिहड़े सितंबर 2018 के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो हो चुके हैं। अगर ये तो बाद तुसीं सितंबर के अगस्त के करंट अफेयर्स कितों भी ना पढ़ो ना ਤਾਂ भी ਤੁਹਾਡਾ पेपर 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ सारे करंट अफेयर्स आते होंगे अगर ये मंथ्स 'चों आ गए। ओके, सो अज ਲਈ ਇੰਨਾ ही, मिलते हैं नैक्सट वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ। थैंक यू सो मच।